to the second stanza of the Prarthana, which is Satchidananda Rupaya Vishwamangala Hetave Vishwadharame Kamulaya Namostu Paramatmane. And then we go on ahead, Vishwadharma Vikasartham Prabho Sanghatitavayam Shubham Ashisham Asmabhyam Dehitat Paripurtaye. So, as I said, in the first stanza, we pray to Dhartima. In the second and third stanza, we praying to Paramatma, which is we not saying some one particular name of the God, but the characteristic of Ishvara, which is Sat Chit Ananda, and the collective name is Satchidananda. हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु, हमको इस कार्य के लिए आपका आशीर्वाद दीजिए. That was the gist of the second and the third stanza. One, as I said last time, one of the most important word of prarthana, of our philosophy, of our dharma is come in that stanza number 2. And not only for the prarthana, not only the Swamsevaka Sevika, every Hindu should understand that word. That's why today we're going to focus more on that particular word. When we sing Satchidananda Rupaya Vishwamangal Hetave Vishwadharme Kamul, ये Vishwadharma, ये Vishwadharma, ये जो शब्द है Vishwadharma, this is one of the most important word of Prarthana, of the Sangha philosophy, of Hindu philosophy. That's why I'm saying not only a Swamsevaka Sevika, every Hindu, it's their responsibility, his or her responsibility to understand this word, this philosophy, and this philosophy which is just lying in that one word is one of the best gift from Hindus to the rest of the world. So today we're going to focus on that particular word. What exactly, when we say Vishwadharma, mean what? When we say Dharma, mean what? When we, particularly when we live in the Western world and more we use the word religion. So ये religion क्या है? Is the dharma or religion same है क्या? अगर अलग है तो क्या अलग है? Same है तो क्या same है? And unconsciously, and when we use the word religion on the place of dharma, what can be the side effect can be for the next generations? That sort of, and because this is the practical problem of the Hindu Samaj today, that's why we're focusing too much on this one particular subject. And if we have some, we will have some time, we will discuss about 2-3 stanza after there is a thought when the vision and mission of the Hindu Swamsevaka Sangha come in the Prarthana, and which is also related to that particular word. So we will go through that, the vision and mission and the methodology of our whole Sangathan. And in brief, if I say, when we go to the Shakha, that is our statement, our policy statement, by playing khel in the Shakha, we can achieve the Vishwa Shanti. जब हम कहते हैं ये पूरा हिंदू स्वयंसेवक संघ which is in the 50 countries and the hundreds and thousands of shakhas across the world, this is for the Vishwa Shanti. And when people see what you exactly do for the Vishwa Shanti, so we go in the shakha and we play. Are you playing? So what is the connection between to play and to attain the Vishwa Shanti? People can understand if you're doing a yajna in the mandir for the Vishwa Shanti. That also, at least people can understand, because that is a very traditional way of the ritual. But people can't understand कि by playing kabaddi, how can you achieve the Vishwa Shanti? But that is true, and that is our vision, mission, and our policy statement. So today we will try to understand that two main important things about which is in our Prarthana. So let's go on the word called dharma. One of the most used word dharma. शायद एक हिंदू दिन में 10-15 बार जब भी कोई हिंदू शब्द की बात आती है तो धर्म. Very casually we use this word dharma. We are from Hindu dharma, that is our dharma. धर्म शब्द को हम बहुत use करते हैं, but we use very casually, not knowingly the deeper meaning of the dharma. तो ये one of the most used word, but one of the most misunderstood word, not by others, even by Hindus. That's the very unfortunate state of the Samaj. So dharma shabda, if we go on the Sanskrit grammar, yeah, don't go on the text before,
or the scriptures, just go on the grammar. So dharma shabd come from a Sanskrit dhatu called dri. द्रि में से धर्म बना है. संस्कृत में हर शब्द का व्युत्पत्ति है. You can understand how the word born even that explain कि अगर किसी को बोला कि apple, let's say apple. So in the spelling in the English APPLE. What is the word? Why this is APPLE? Why not APLE? If you ask people, if you ask the grammar specialist of the English, they say no, because it is since then we using this spelling. Otherwise there is no logic. Why apple is APP and not APLE? There is no logic, because it's there. ये ऐसा था इसलिए ऐसा है. But in the Sanskrit, every word उसका व्युत्पत्ति होता है. वो कहाँ से पैदा हुआ, उसका व्युत्पत्ति क्या है, उसका धातु क्या है, उसका मीनिंग क्या है. So that's totally maybe some other day the how this Sanskrit is the scientific language. That's not the matter for today. So द्रि में से धर्म निकला है. द्रि धातु में से. द्रि का मतलब क्या है? धारण करना, जो धारण करने योग्य है, जो धारण करने योग्य है. एनीथिंग, एनी वैल्यू, एनी थॉट जो इस जीवन में धारण करने योग्य है. आइडियल ह्यूमन बीइंग, एन आइडियल मैन एंड वुमन, they should accept that, hold that value in their life. That is dharma. Hold that action in the life. That is dharma. जो उन्होंने करना चाहिए, not वो करना चाहते हैं. We not going towards the prayers. We talking about the shreyas. जो करना चाहिए, जो करने योग्य है, वो धर्म है. वहां से धर्म शब्द निकला है. There are and since ages हम हिंदू इस शब्द को यूज करते हैं. One of the most ancient use of this word we can find in the Manusmriti. Manusmriti is minimum 10,000 years back. The scripture Manusmriti, 10,000 minimum. So महाभारत हमको मालूम है कि महाभारत 5100 साल पहले हुआ था. उसके एक मतलब मिनिमम जो टाइम कीपिंग है या टाइमलाइन है, महाभारत के बाद में अगर उसके पीछे रामायण है तो रामायण का काल एक 8000 years बैक आता है. उससे पहले उपनिषद का काल आता है, उससे पहले वेद काल आता है. And in the Ved you can see the name Manu. So Manu was even before the Vedas. So the Vedic Rishi, they mentioning about the Manu. So Manu was even before the Vedas. So Manu time period of the Manu is around 12,000 years back minimum. It may be more, but it is minimum. And you see, forget about Africa, even this the multi-modern Europe, 2000 years back, 3000 years back, they didn't know what is cloth, what is food. The development of the civilization in the rest part of the world is, there is no comparison at all. If you see 12,000 years back, a rishi called Manu sitting on the bank of the Saraswati river and thinking about the definition of dharma. What a height of that civilization. और वो सोच रहा है मनुष्य ने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. When the rest of the world even don't know food क्या है, cloth क्या है, forget about do's and don'ts. That what a height of the civilization, that Hindu civilization. And Manu wrote a shlok in the Manusmriti. In his view, 12,000 years back, the definition of the dharma. Manu लिखते हैं, धृति क्षमा दमस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण. आज हम धर्म का शब्द जब यूज करते हैं, when we use the word dharma, it's so unfortunate state of even the Hindu समाज. किसको आज ज्यादा धार्मिक बोला जाता है? बोलते हैं वो that person is very धार्मिक. Mean what? He or she daily goes to मंदिर, रोज मंदिर जाते हैं, लंबा तिलक लगाते हैं, बहुत सारे रिचुअल करते हैं, वो हाथ में माला हमेशा घूमती रहती है उनके. सच धार्मिक पर्सन. Absolutely no connection with these all rituals with the word dharma. Absolutely no connection. So this present image of a dharmic person, basically no connection with the real image of the dharma. मनु क्या लिख रहे हैं 12,000 साल पहले? वो व्यक्ति धार्मिक है जिसमें ये गुण है. A person who holds these qualities is
धार्मिक पर्सन। कौन सी हैं? धृति, धैर्य, पैशंस, धृति, क्षमा, फॉरगिवनेस इज धर्म, पैशंस इज धर्म, दम टू कंट्रोल ऑन द सेल्फ इज धर्म, अस्तेयम नॉट टू स्टील इज धर्म, शौचम प्योरिटी इन द लाइफ दैट इज धर्म, इंद्रिय निग्रह to control on your senses that is dharma, dhi buddhi is dharma, vidya is dharma, vidya satyam truthfulness is dharma, akrodho not to be angry is dharma। ये धर्म है। चोरी नहीं करना धर्म है, सत्य बोलना धर्म है, दया करना धर्म है, क्षमा करना धर्म है, विद्या धर्म है, ज्ञान धर्म है। दिस इज बेसिक आइडिया ऑफ द धर्म। ऐसे गुण जिस व्यक्ति में है वो व्यक्ति धार्मिक है। These sort of qualities any person holds, that person is called धार्मिक। ऐसे गुण जिसमें है वो धार्मिक है। तो हमारे यहाँ अगर कोई व्यक्ति गड़बड़ करता है इन तो बोलते हैं अरे इसका धर्म निकल गया क्या? That's the way even in the villages today people use this language। इसका धर्म कहाँ चला गया है? अरे आप ये धर्म नहीं है। If some person do something wrong बोलते हैं this is not dharma, this is not dharma। Dharma is traditionally from thousands of years we use in two ways। If we talk about the practical life, one is righteousness is dharma। righteousness जो करने योग्य है, जो धारण करने योग्य है वो धर्म है, righteousness। और दूसरा अगर हम यूज करते हैं इन द प्रैक्टिकल सेंस, योर ड्यूटी इज धर्म। तो हम righteousness में कैसे बोलेंगे? दया धर्म है, दान धर्म है, क्षमा धर्म है, मैत्री धर्म है, करुणा धर्म है, वीरता धर्म है। और हर व्यक्ति का अपना धर्म है। वीर का धर्म है लड़ना, वीर का धर्म उस समय बुद्ध की तरह बातें करना, दैट इज नॉट वीर का धर्म। हर व्यक्ति का अपना धर्म है। तो उसके साथ में ड्यूटी आती है। द सेकंड मीनिंग इज कम्स द ड्यूटी। हम बोलते हैं ना पुत्र धर्म, पुत्री धर्म, पिता धर्म, माता धर्म। माता धर्म मीन माई ड्यूटीज एज अ मम, पुत्र धर्म माई ड्यूटीज एज अ सन। हमने हमेशा से धर्म शब्द को इसी प्रकार यूज किया है। राइटियसनेस इन द लाइफ एंड माई ड्यूटी इन द लाइफ, दैट इज धर्म। पुत्र धर्म, पिता धर्म, मैत्री धर्म, मित्र धर्म, पड़ोसी धर्म, राष्ट्र धर्म, माई धर्म फॉर दिस नेशन, समाज धर्म, युग धर्म, माई धर्म अकॉर्डिंग टू दिस युग। तो माई ड्यूटीज एंड द राइटियसनेस, इसी वे में हमेशा उसको हमने धर्म शब्द को यूज किया है। मेरा धर्म क्या है? श्रीमद् भगवत गीता, when Arjun get fearful because of the situation and he's totally confused, और उस समय वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। कृष्ण को बोलते हैं ये इनको मार के क्या मिलेगा, ये मेरे सब अंकल मामा चाचा सामने खड़े हैं, what I'm going to get by killing them, why you putting me in this wrong thing। उस समय कृष्ण इतना हार्श वर्ड बोलते हैं, अगर आज वो हार्श वर्ड किसी को बोल दो ना वो संग से ही निकल जाए जिंदगी भर के लिए। कृष्ण क्या क्या वो नहीं बोल रहे हैं उस समय अर्जुन को। कृष्ण उसको यहां तक बोलते हैं एक स्थान पर, क्लेव्यम मास्मा गमः पार्थ, अरे तू हिंजड़ा मत बन। कृष्ण बोल रहे हैं उसको। ऐसा आज अगर किसी को बोलो, किसी कुछ गड़बड़ करने वालों, वो जिंदगी भर आपका मुंह न देखे। कृष्ण क्या क्या नहीं बोल रहे हैं उसको। कृष्ण एक स्थान पर उसको बोल रहे हैं इसी तरह, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अर्जुन को कहते हैं अर्जुन आप ये हिपोक्रेसी मत करो। अभी आपका जो कॉवर्डनेस है वो बाहर आ रहा है, और उसको छुपाने के लिए आप ये बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें कर रहे हो। तो मिथ्याचार से उच्चते, मिथ्याचारी, आप हिपोक्रेट हो अगर आप ऐसा बोल रहे हो। तो ऐसा कृष्ण उसको बोल रहे हैं। और फिर कृष्ण क्या बोलते हैं उस समय, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अर्जुन यू आर क्षत्रिय, इस समय आपका धर्म क्या है? आपका धर्म है युद्ध करना। अगर आप सन्यासी होते आप ये सब बातें बोल सकते थे। उस समय आपका धर्म कुछ वो सन्यासी धर्म होता।
उस समय आप कुछ और बात बोल सकते थे। अभी आप क्षत्रिय हो और कृष्ण क्या कह रहे हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपने धर्म में मर जाना भी अच्छा है। पर धर्मो भयावह, अपने धर्म को छोड़ के किसी के दूसरे धर्म को उस समय अपने ऊपर ओढ़ लेना और ये नाटक करना, हिपोक्रेसी करना, तो ये गलत है, ये भयावह है। दैट्स कंप्लीटली रॉन्ग। अपने धर्म का निर्वहन करते अगर आपको मृत्यु भी आती है, स्वधर्मे निधनम श्रेय, तो भी वो श्रेयस्कर है, वो उचित है। नॉट वरी, आप अपने धर्म का पालन कीजिए, अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए। तो संघ शिक्षा वर्ग लगा हुआ है, एक शिक्षक या शिक्षिका, संघ शिक्षा वर्ग, समिति शिक्षा वर्ग है, शिक्षक शिक्षिका है, और इधर शाखा का टाइम हो रहा है, और जस्ट बिफोर द शाखा ही और शी वेंट टू द किचन, और उस समय उनको लगा कि अरे किचन में तो अभी प्रिपरेशन पूरा नहीं हुआ है, तो अभी बाद में 1 घंटे की शाखा के बाद में सब भोजन करने आएंगे, सो व्हाट विल हैपन देन, तो देन ही और शी स्टार्ट हेल्पिंग इन द किचन। ओके, अच्छा काम है ना, किचन में हेल्प करना चाहिए। इतनी देर में शाखा का टाइम हो गया, और वहां शाखा में कौन जाएगा? आपका आपका धर्म क्या था उस समय? आपका धर्म किचन में हेल्प करना था, या आप शिक्षक शिक्षिका हो, आपका धर्म क्या था? अब ये धर्म का, दिस इज कॉल्ड आपद धर्म, दिस इज कॉल्ड परिस्थिति धर्म, दिस इज कॉल्ड युग धर्म। हर समय में आपका धर्म क्या है? धर्म आपको गाइड करता है, धर्म आपको परिभाषित करता है, धर्म आपको कंफ्यूज नहीं करता है। धर्म आपको बताता है वो भी जरूरी है, पर अपना कार्य छोड़ करके किसी दूसरे कार्य को करने जाना और स्वयं के कार्य को खराब कर देना, यह धर्म नहीं था उस समय। एज अ शिक्षक एंड शिक्षिका, इट वॉज योर responsibility to inform the sarvadhikari or the karyava, that is, I just observed, that is some problem. Now my dharma is to go to the shakha, you tell me what to do, otherwise you look after the thing. That was your dharma, that was the dharma of the shikshak and shikshika. Later if they try to justify, I was there in the kitchen because everything was out of just ऐसा सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा ऐसा लग रहा था, there is no justification. स्वधर्मो निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। आप एक काम सही करके दूसरे काम को गड़बड़ करना, एंड यू कांट जस्टिफाई दैट। धर्म हमको बताता है कि कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, धर्म हमको गाइड करता है। एक एग्जांपल बड़ा सुंदर, शायद आप लोगों ने कहीं सुना हो, सुंदर एग्जांपल आता है अबाउट हाउ दिस the confusion enter in the mind sometime. So the example is, let's say a girl, अगर भारत में दूसरा एग्जांपल हो सकते हैं, हम लोग केन्या में हैं, एक लड़की है, इट्स स्लाइटली डार्क इन द नाइट एंड शी इज गोइंग ऑन अ रोड एंड सम गुंडा चेसिंग हर, या उसको पीछा करता है विद सम बैड इंटेंशन, एंड द गर्ल इज वेरी फ्राइटन, एंड यू जस्ट स्टैंडिंग देयर जस्ट ऑन द कॉर्नर ऑफ द रोड, एंड वो गर्ल भाग रही है अपने को बचाने के लिए, एंड शी जस्ट टर्न राइट एंड शी गो इन अ स्ट्रीट. After 15 seconds, the Gunda reached there. And Gunda is confused. The girl went to right or went to left. And because you're standing there, वो गुंडा आपको पूछता है, where's the girl? Where's she gone? Right or left? You know, girl went into the right street. या आप वहां खड़े हैं, वो गुंडा आपको पूछ रहा है गर्ल कहाँ है, आप क्या बोलेंगे? यहां धर्म हमको गाइड करता है। आप क्या बोलेंगे? सच बोलेंगे। सच बोलना चाहिए तो सच बोलना धर्म है, सत्य बोलना तो धर्म है, असत्य बोलना नहीं, ये तो झूठ बोलना तो धर्म नहीं है। अभी आप क्या बोलेंगे? सच बोलते हैं तो गड़बड़ होती है, असत्य बोलते हैं तो लगता है मैं पाप कर रहा हूं। दैट वाज द कंफ्यूजन ऑफ द युधिष्ठिर इन द महाभारत। उस समय कृष्ण बोलते हैं तुम्हारा धर्म क्या है? जो उस समय कृष्ण युधिष्ठिर को बोल रहे हैं, यही धर्म है। इस समय सत्य का धर्म क्या है, इस समय यह सोचना पड़ेगा। तो sometimes English language struggle to find the correct words, and no need to find the words, better to find the right words in the Hindi or Sanskrit. So संस्कृत में सुंदर 2 शब्द हैं, सत्य तथ्य, सत्य and तथ्य. In English if we say truth and the fact, there is a great difference between the truth and the fact. If you say to the person, to the gunda, yes, I saw the girl went to right, you saying tathya, you mentioning a fact, that is not truth, that is not truth at all.
दैट इज फैक्ट ओनली। उस समय केवल आप तथ्य बोल रहे हैं, सत्य नहीं बोल रहे हैं। सत्य क्या है? विच इज द गुड फॉर दैट यूनिवर्स ऑन दैट पर्टिकुलर मोमेंट, दैट इज सत्य, दैट इज धर्म। उस समय वो बोलना जो पूरे यूनिवर्स के लिए बेटर है, जो सही है। एंड दैट इज आई एम सेइंग नॉट ओनली फॉर द गर्ल, योर दैट स्टेटमेंट अफेक्टिंग द होल यूनिवर्स, नॉट ओनली दैट पर्टिकुलर गर्ल। क्योंकि उस गर्ल का अपना एक यूनिवर्स है। अगर वो गर्ल के साथ में कुछ होता है, उसका पूरा परिवार परेशान होता है, उसके फ्रेंड्स परेशान होते हैं, दैट वाइब्रेशंस गो लाइक एनीथिंग in the whole universe. Your words in each moment of the life, our words affecting the universe. उस समय आपने वह कहना जो यूनिवर्स के हित में है, जो विश्व हित में है। अगर आप बोलते हैं हाँ मैंने देखा लड़की went to the right, you are wrong, you are on the path of the adharma, you saying तथ्य not सत्य, you saying the fact not the truth. धर्म हमको बताता है जीवन की किसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए। Righteousness and the duty. Always we use the word dharma in this way. Never in the Hindu history we use the word dharma for the puja part. Never. Because they are rituals. Rituals are the path to reach to the dharma, to become the dharmic. Rituals are the path. Rituals are not the destination. Rituals तो टूल हैं। स्वामी विवेकानंद का एक फेमस कोटेशन है, rituals are the kindergarten of the spirituality. Rituals are the kindergarten of dharma. जहां किंडरगार्टन, जहां से स्कूल शुरू होता है, अरे अभी हमको पीएचडी तक जाना है, वो धर्म है। हम कब तक वहां माला करना, आरती करना, पूजा करना, तिलक लगाना, दे आर द साइन ऑफ यू गोइंग ऑन द पाथ ऑफ द धर्मा, बट दे आर नॉट धर्मा। हम केवल वहां नहीं रुक सकते। हाउ लॉन्ग अ पर्सन कैन स्टे इन द किंडरगार्टन? अगर कोई व्यक्ति 20 साल का हो जाए, मालूम पड़ा अभी भी किंडरगार्टन में जा रहा है, लोगों को लगता है समथिंग इज रॉन्ग। इट्स सब कोई यहाँ डिसेबिलिटी है, कुछ ना कुछ, उनको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली इट हैपेंस इन आवर समाज एंड मेनी पीपल फील दैट दैट इज धर्म। दैट इज नॉट धर्म, दैट इज अ पाथ टू गो टुवर्ड्स द धर्म। वहां से जर्नी स्टार्ट होती है, हमने आगे जाते जाना चाहिए। धर्म का मूल कल्पना कभी भी पूजा पाठ नहीं रहा है। कुछ जो लोग भारत से आए हैं, जो लोग भारत को जानते हैं, थोड़ा हिंदी जानते हैं, some words so amazingly we use in our villages, in our normal life. एक शब्द है धर्मशाला। धर्मशाला हमने सुना होगा, धर्मशाला। गांव गांव में धर्मशाला होती है। In each village you can see some धर्मशाला। धर्मशाला mean what? A place where someone can come and stay. If any person in the night in your village, in your town, they don't know where to stay, you can come here, you can stay here. धर्मशाला में रहने का पैसा नहीं लगता है कभी भी। अब अगर कोई लेने लगे हैं, बात दूसरी है। ट्रेडिशनली धर्मशाला में रहने का कभी पैसा नहीं लगता था। धर्मशाला धर्म के लिए है। इसका मतलब ये नहीं वहां कोई पूजा पाठ हो रही है, उस धर्मशाला में कोई मंदिर नहीं है, कोई पूजा पाठ नहीं है। ये हमारा ड्यूटी है फॉर अ पर्सन इन द प्रॉब्लम। इफ अ पर्सन ही और शी वांट टू स्टे फॉर द फ्यू डेज, दे कैन स्टे हियर। इट इज अवेलेबल, द फूड इज हियर, द शेल्टर इज हियर। व्हेनेवर यू फिनिश योर टास्क, यू गो। धर्मशाला में कोई पूजा पाठ नहीं है, यह धर्म है। अभी वो धर्मशालाएं मिनी होटल बनने लगी हैं, दैट्स अ सेकेंडरी थिंग। या धर्मशाला वहां का कोई पैसा नहीं है। कुछ लोगों ने सुना होगा शब्द धर्म कांटा। धर्म कांटा सुना क्या? जहां ये बड़े बड़े लॉरी, ट्रक्स, उनका वेट, उनको वे करने का जो स्केल होता है, बड़ा स्केल होता है, हाउ मेनी टन्स इज योर द वेट, वो धर्म कांटा है। अब धर्म कांटा में कौन सी पूजा पाठ है, कौन सा तिलक हो रहा है वहां? देयर इज नो पूजा पाठ। धर्म कांटा शब्द कहां से आया है? हम सही तोलते हैं, हम सही तोलेंगे, हम सच बोलेंगे, जो आपका वेट होगा वो आपको बताएंगे। धर्म कांटा, अब कहां से ये शब्द आए भाई? अभी हम सब बोलते हैं ना, मेनी ऑफ अस वी यूज द वर्ड धर्म भाई, धर्म बहन, ये मेरी धर्म बहन है, हम बोलते हैं ना। हम दोनों के बाद बीच में कोई पूजा पाठ हुआ क्या? कोई पूजा पाठ नहीं हुआ है। धर्म बहन यानी हम दोनों के बीच में धर्म का रिश्ता है। धर्म मीन प्योरिटी है, प्योरिटी है, वो धर्म का रिश्ता है। धर्म पत्नी या धर्म पत्नी,
गर्लफ्रेंड को धर्मपत्नी नहीं बोलेंगे, गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, वो धर्मपत्नी नहीं है, क्योंकि अभी वो धर्म का रिश्ता नहीं है बीच में। धर्मपत्नी जैसे ही वो 7 जन्म का रिश्ता बनाए, अभी हम दोनों के बीच में धर्म है, धर्मपत्नी है क्या। तो इतने सुंदर तरीके से ट्रेडिशनली सिंस थाउजेंड्स ऑफ इयर्स धर्म शब्द को हम यूज करते हैं इन द 2 ways, राइटियसनेस एंड my duties. Unfortunately, we are in the Western world, which is completely different mindset. Not fortunately or unfortunately, we are here, but we need to understand now how to incorporate these traditional definitions here in this Western world. Hindu mindset completely duty based है, duty based है, कर्तव्य बस उस पर आधारित है, अपने कर्तव्य का ध्यान दो, पिता धर्म, पुत्र धर्म। वेस्टर्न माइंडसेट पूरा राइट बेस है, माय राइट्स, दिस इज माय राइट्स, एज अ सन दीज आर माय राइट्स, एज अ टेनेंट दीज आर माय राइट्स। पूरा वेस्टर्न माइंडसेट राइट बेस है और हिंदू माइंडसेट पूरा ड्यूटी बेस है। अब ये कंप्लीटली 2 डिफरेंट वर्ल्ड हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ राइट्स को इग्नोर किया गया है। अंडरस्टैंड दिस, if the pita and putra, yeah, putra dharma, as a putra, what are my duties? In the dharma of in the duties of the putra, the right of the pita automatically आते हैं। पिता की ड्यूटीज में पुत्र के राइट्स ऑटोमेटिकली आते हैं। दे आर अंडरस्टूड देयर, दे आर पार्ट ऑफ दैट द बिगर सीन। अगर एक के धर्म में, एक की ड्यूटीज में दूसरे का जो राइट्स हैं वो सेफ हैं, वो होने ही वाले हैं, परंतु द लैंग्वेज ऑफ राइट्स bring the clashes, and the language of the duty always bring to help others. That is the basic difference between the Hindu mindset and this Western Abrahamic mindset. जिन्होंने पुराण भी नहीं, उपनिषद में सुंदर कथा एक आती है, और देखो these ideas, since when our rishis and munis they are talking about these ideas. उपनिषद की कथा है, ईश्वर ने, ब्रह्मा जी ने देवताओं और दानवों दोनों को अपने यहाँ डिनर के लिए बुलाया। A beautiful katha come in our scriptures. In most of us we know that this katha. So भगवान invited देवतास and दानवास both for the dinner at his house, और उस दिन भगवान ने खीर बनाई है, खीर बनाया है, पायसम सबको, और बोला सबको खाना है, पर एक शर्त है। क्या शर्त है? तो जैसे हमने, हमारा जो वैदिक काल है, यज्ञ संस्था was very influential that time. यज्ञ में आहुति डालने का जो लंबा चम्मच होता है, आपने देखा होगा, एक वुडन लंबा स्पून होता है, जिससे, क्योंकि ये जो यज्ञ का फायर है वो बहुत तेज होता है, तो एक लंबा स्पून होता है जिससे यज्ञ में आहुति डालते हैं। तो बोलते हैं कि इससे आपको खीर खाना है, इस लंबे स्पून से खीर खाना है, या और इस स्पून को आप खीर खाते समय आपका जो ये हाथ है ये मुड़ना नहीं चाहिए, यहां से ये हाथ मुड़ना नहीं चाहिए, हाथ सीधा रहना चाहिए। अब ये तो बड़ी अजीब शर्त है, और वो इतना लंबा स्पून और फिर ऊपर से इतना लंबा हाथ, अब उसमें खीर ले भी लिया और उसको पूरा ऊपर किया है, तो वो दानवास, ऑल द दानवास, बिकॉज दानवास थिंक ओनली इन माय राइट्स, व्हाट आई कैन हैव, they can't think what I can give back, they think only what I can have. अब वो इसको उतना लंबा हाथ, उतना लंबा स्पून, उसको पकड़ करके ऐसे ऊपर से डालते हैं, थोड़ा उनके मुंह में आता है, थोड़ा बाहर जाता है, पूरा नाटक चल रहा है। What's going on this? So funny scene, और ऊपर से बोलते हैं कि भगवान you are wrong. देवतास think what I can give. देवतास think in different way. What I can give. देवताओं ने क्या किया? ओके, एक संपदा गण विभाग द्वितति प्रथमत्वति अर्धव्रत एक पद दक्षिण सर एवरीबॉडी उपविश, सब बैठ गए। नाउ एक के सामने एक बैठे हुए हैं, तुम मेरे को खिलाओ, मैं तुमको खिलाता हूं, हाथ मोड़ने की जरूरत ही नहीं है। तो एक के सामने एक बैठे हुए हैं, 2 लाइन बनी हुई है, 2 लोग आमने सामने बैठे हैं, और वो उसको सामने वाले को खिला रहे हैं, सामने वाला उनको खिला रहा है, पूरा आनंद से खीर खा रहे हैं। This is the difference between the right mindset and the duty mindset. जब हम मैं क्या दे सकता हूं, जब पिता सोचता है
मैं क्या दे सकता हूँ, माँ सोचती है मैं क्या दे सकती हूँ, बेटा और बेटी सोचते हैं व्हाट आई कैन गिव बैक टू द फैमिली, द होल फैमिली फ्लरिश। और एक की ड्यूटीज में दूसरे का राइट अंडरस्टूड है। उसी परिवार में अगर वो चार लोग, मेरा राइट क्या है, पिता सोचेगा मेरा राइट क्या है, माँ सोचेगी मेरा राइट क्या है, और बेटा और बेटी सोचे मेरा राइट क्या है, आप अंदाज लगा सकते हो उस फैमिली का क्या होगा। दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस राइट माइंडसेट एंड द ड्यूटी माइंडसेट। और धर्म हमको बताता है ड्यूटी माइंडसेट। अभी ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट हम आए हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड में आए हैं, तो वेस्टर्न वर्ल्ड में आकर के एक बड़ी बीमारी हो गई है कि धर्म और रिलीजन, दो बातें आपस में मिल गई हैं, धर्म और रिलीजन दोनों मिक्स हो गए हैं। और अभी हम बोलने लगे हैं कि आपका रिलीजन कौन सा है, हमारा हिंदू रिलीजन है। हम बोलने लगे हैं अरे अब ये हिंदू रिलीजन कब से बन गया। इट्स अ वेरी वेरी ट्रिकी सिचुएशन, बोलना कि नहीं बोलना उसको रिलीजन। रिलीजन इज अ टोटली वेस्टर्न कंसेप्ट। रिलीजन कहां से निकला है, अब्राहमिक रिलीजन। रिलीजन एक कंसेप्ट है विच इज टोटली रिलेटेड टू द पूजा पाठ, टू द रिचुअल्स, उसके साथ में कनेक्टेड है। और रिलीजन बहुत ही कॉन्क्रीट स्ट्रिक्ट वे है। देयर इज नो फ्लेक्सिबिलिटी इन द आइडिया ऑफ द रिलीजन। मैंने पिछली बार बताया था क्रिश्चियनिटी इज द रिलीजन। तो रिलीजन के मीन क्या है, गॉड, जीसस, चर्च, बाइबल, प्रीस्ट, डिवोटी, दिस इज रिलीजन, दिस इज माय क्रिश्चियनिटी रिलीजन। इसके बाहर जो है वो गड़बड़ है, आपको इसी में रहना है। इसके बाद आप यू कांट लुक टुवर्ड्स द राइट और लेफ्ट। दिस इज अवर रिलीजन। इस्लाम, अल्लाह है, फिर मोहम्मद साहब है, फिर मॉस्क है, उसमें कुरान है, वहां इमाम है, और मैं एक विश्वासी व्यक्ति हूं। आई एम अ बिलीवर एंड द रेस्ट ऑफ द whole world, if they are non-believer, they are my enemies, and to make them believe is my duty. such a this is typical religious जो जो डेफिनेशन है रिलीजन का। हिंदू धर्म में कोई एक भगवान है क्या, कोई एक पुस्तक है क्या, कोई एक मंदिर है क्या, कोई एक तरह का प्रीस्ट है क्या। वी कांट फिट दिस आइडिया ऑफ हिंदुइज्म विद द रिलीजन। अरे हाउ कैन वी से दिस धर्म, okay, the Britishers, they can't, when they reached to India 200 years back, they couldn't understand the idea of the dharma, and their idea, whole idea was the religion. Beyond religion, it was impossible for them to think. And they ask us, हमारा religion Christian है, तुम कौन हो? हमको लगा, what is this religion? We never heard this word. What do you mean? So as we are Christian, who you are? हमने कहा हम सब हिंदू हैं। उन्होंने उस दिन बोल दिया आज से आपका religion हिंदू है। There is no comparison with this idea of religion and the idea of dharma. अगर इस कॉन्सेप्ट पे बात करनी है, ओके, स्वामीनारायण, अगर ये कॉन्सेप्ट है तो स्वामीनारायण एक रिलीजन है, क्योंकि एक पुस्तक है भगवान स्वामीनारायण, मंदिर, शिक्षापत्री, एक पुस्तक है, एक ईश्वर का अवतार है। इस तरह के तो हजारों हजारों रिलीजन है। सिखिज्म वी कैन से, इस्कॉन वी कैन से, जहां एक ईश्वर के अवतार की पूजा, एक पुस्तक को आधार मानना, ऐसे। परंतु उसके लिए भी हिंदू परंपरा में रिलीजन वर्ड नहीं है। द वर्ड इज मत, पंथ, परंपरा, संप्रदाय, संप्रदाय, मत, पंथ। अगर हाउएवर दिस इज द हिंदू वर्जन, द धार्मिक वर्जन ऑफ मत पंथ, उसका भी अब्राहमिक वर्जन के साथ में कंपैरिजन नहीं हो सकता, बिकॉज अब्राहमिक वर्जन ऑफ रिलीजन is very strict about their ideas. So as I said last time, you can't put the Bible in the mosque. You can't imagine to put the Bible in अरे प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक एक दूसरे के चर्च में नहीं जाएंगे, शिया और सुन्नी एक दूसरे की मॉस्क में नहीं जाएंगे, बाकी और रिलीजन की पुस्तक को तो भूल ही जाइए, भूल ही जाइए। ये जो धार्मिक आइडिया ऑफ मत पंथ है, इसको भी हम उससे कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ एक्सेप्टेंस है। एक स्वामीनारायण डिवोटी को कृष्ण मंदिर में जाते समय प्रेम से जाते हैं। कृष्ण का जो डिवोटी है वो दुर्गा के मंदिर में आराम से चले जाते हैं। उनको ऐसा नहीं लगता है कि देयर इज समथिंग एल्स, मैं कहीं और जा रहा हूँ। अरे मैंने तो देखा है, हम में से बहुत सारे लोग जब इंग्लैंड में घूमने आते हैं, सेंट पॉल के चर्च में जाते हैं, और वो सामने बड़ा वो जीसस लगे हैं, बहुत बड़ा चर्च है, तो हम भी वहां ऐसे हाथ जोड़ करके हम उसमें भी परमात्मा देखते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि ईश्वर सर्वभूता नाम, ईश्वर सर्वत्र है। यहाँ एक्सेप्टेंस है, यहाँ give me few minutes and be with me few minutes on this basic difference, one more basic difference between the Western world and the Eastern world.
and that difference is tolerance versus acceptance. In the whole western world एक वर्ड को बहुत प्रमोट किया जाता है और वो वर्ड है टॉलरेंस. इंटरफेथ डायलॉग होंगे, वी शुड बी टॉलरेट. टॉलरेंस यहाँ का वेस्टर्न वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा वैल्यू सिस्टम है. वैल्यू सिस्टम है. क्यों है टॉलरेंस? क्योंकि द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी इज इनटॉलरेंट. वो इनटॉलरेंट होने के कारण टॉलरेंस को प्रमोट किया जाता है. हमको टॉलरेंस का लिटरली हिंदी में, संस्कृत में, गुजराती में मीनिंग क्या है? सहन करना. टॉलरेंस मीन मैं तुमको टॉलरेट कर रहा हूं. सहन करना मीन आई एम नॉट एग्री विद यू एट ऑल, आई एम टॉलरेटिंग यू बिकॉज यू ऑल्सो हैव अ राइट टू लिव, अदरवाइज आई एम नॉट एग्री विद यू. अब ये टॉलरेंस, आप लोगों को सहन करना सीखो, मत मारो उनको, मत कन्वर्ट करो. टॉलरेट पीपल, ये एक बहुत बड़ा आइडिया है वेस्टर्न वर्ल्ड में. हिंदू वर्ल्ड में इट्स सच ए चाइल्डिश आइडिया. हमारे यहाँ तो सहन करना नहीं, हमारे यहाँ तो सामने वाले से कुछ लर्न करना. हमारे यहाँ का आइडिया टॉलरेंस नहीं है, एक्सेप्टेंस है. अगर कोई नया व्यक्ति बोलता है मैं उस ईश्वर के उस रूप की पूजा करता हूं और वो हमारा शास्त्र है, वी बिकम क्यूरियस. और रियली टेल मी समथिंग अबाउट दैट. क्या है उसके बारे में जानने की इच्छा है, उसमें से क्या अच्छा हम ले सकते हैं. इवन दीज वेर द highly developed ancient societies, Hindu societies, which was the urban societies, when they reached to the completely in the jungles, to the Vanvasi or the जनजाति people, तो ये धर्म का प्रकाश अभी वहां पहुंचा नहीं है. तो वो किसको मान रहे हैं? अरे वो तो अभी पशु पक्षी उन्हीं की पूजा कर रहे हैं, उनको तो अभी मालूम ही नहीं है ये ईश्वर और इसके बारे में. तो अरे तुम बड़े बेवकूफ हो, ऐसा नहीं बोला उस समय. ओके, तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द सोसाइटी. तो एक पशु पक्षी को एक देवी देवता के साथ में जोड़ दो, या तो सब पशु पक्षी, अभी उसके कारण सांप की भी पूजा है, शेर की भी पूजा है, कुत्ते की भी पूजा है, सब में ईश्वर है. व्हाट ए ग्रेट आइडिया टू एक्सेप्ट द थिंग. ये टॉलरेंस का आइडिया ये हिंदू आइडिया है ही नहीं. सो वी कांट से दिस रिलीजन एंड धर्म, अरे totally two different worlds, totally two different worlds. Even I'm saying again, even the Hindu idea of mat, panth and sampradaya, even that can't be comparable with the idea of the religion. पर अभी वेस्टर्न वर्ल्ड में आकर के हमको बोलना पड़ता है हमारा रिलीजन क्या है, हिंदू. क्योंकि ये बोलना मजबूरी है. When the census happens, और जनगणना के लिए लोग आपके पास में आएंगे, आपको पूछेंगे आपका रिलीजन क्या है, बिकॉज दैट इज द वेस्टर्न आइडिया. उस समय धर्म हमको क्या कहता है? नाउ द धर्म कमिंग अगेन हियर एंड टेलिंग यू डोंट स्टे इन द कंफ्यूजन, गो अहेड. तो गो अहेड क्या? इस समय अगर हम बोलेंगे कि आपके रिलीजन के बराबर तो हमारा मत पंथ है, एंड देन वी हैव हंड्रेड्स ऑफ मत पंथ परंपरा, और अगर सब अगर अपने अपने मत पंथ को अपना अपना रिलीजन बोलेंगे तो हिंदू समाज तो पहले ही स्प्लिट है, और ज्यादा स्प्लिटेड हो जाएगा. तो दैट इज नॉट द वे. उस समय बोलना ओके, उस समय समाज ने कैसे सोचना, उस समय समाज ने सोचना ओके नाउ दिस इज नॉट इंडिया, दिस इज अ वेस्टर्न कंट्री, डेफिनेशंस आर डिफरेंट, वी नीड टू रीडिफाइन अवर थिंग्स इन अ न्यू वे, इन अपडेटेड वे. तो बोलना यस हमारा रिलीजन हिंदू, यस हम हिंदू धर्म को, हिंदू रिलीजन को मानने वाले लोग हैं. सब हिंदू अपना रिलीजन हिंदू ही लिखते हैं. बाद में मैं हिंदू नहीं हूँ, स्वामीनारायण हिंदू नहीं है, जैन हिंदू नहीं है, ये सब बकवास है वो. और ये नई नई चीजें निकलती रहती होगी. हिंदू एक बड़ा अम्ब्रेला है जिसके नीचे सब मत पंथ परंपराएं आरंभ से रहते हैं. उस समय बोलना यस हमारा रिलीजन हिंदू है. बट नाउ आई एम गोइंग अहेड विद वन सेंटेंस एंड I urge you all to think on that more than me, because every country is different, every society is different. जिस देश में आप 30, 40, 50 साल से रहते हैं वहां आपके अफ्रीकन मित्र भी हैं. You have many African friends. When you're talking to Hindu, they can understand the language of dharma. When you say dharma, your African friends, your African neighbors, your colleagues, उनको ये आइडिया नहीं होगा.
उस समय उनको बताना चाहिए, वो अगर पूछते हैं आपका रिलीजन हिंदू है, बोलना चाहिए यस हमारा रिलीजन हिंदू है, उसी समय बोलना चाहिए। बट दिस आइडिया, दिस द हिंदू आइडिया ऑफ रिलीजन इज बेसिकली बिट डिफरेंट देन द वेस्टर्न एंड द अब्राहमिक आइडिया ऑफ रिलीजन। उसी समय बताना चाहिए कि ये जो रिलीजन का आपका आइडिया, हमारा आइडिया थोड़ा सा अलग है, एंड वी बिलीव इन द इन एक्सेप्टेंस। और दूसरा, इट्स अ प्लूरल आइडिया, नॉट अ पॉलीथेस्टिक आइडिया। पॉलीथेस्टिक आइडिया जहां ईश्वर का एक ही रूप चलेगा, दूसरा कोई रूप नहीं चलेगा, उस समय बताना चाहिए वी फॉलो द प्लूरल वे ऑफ लिविंग, ऑफ इवन प्रेइंग द गॉड। So we know God is one, God is not 100, God is not thousands, but we appreciate people to see the Ishvara, the God, in many forms as they wish. And that is the basic difference. Let them understand your viewpoint, our viewpoint. उस समय ये पॉइंट बताना चाहिए कि यस ये एक विशेषता है, और दिस इज वी कॉल इट दिस अवर धार्मिक व्यू टू लुक टुवर्ड्स द रिलीजन। ये हमारा धार्मिक व्यू है। I urge you, use again and again word dharma with your friends, with your African friends, and make them used to listen these words, and let them understand what is this new word again and again the people say. 30-40 years back, when the first time we Hindus, we started saying yoga, initially the Western world said yoga, what is that? Now after the 30-40 year journey, no Western person will say what is yoga. They know what is yoga. अभी योग संस्कृत शब्द नहीं बचा है, अभी वो इंग्लिश शब्द हो गया है। कर्मा now is an English word, is official English word in the Oxford Dictionary. Even the English people, they use your karma. Now they understand the karma. Next word is coming, सेवा, गुरु। सैकड़ों ऐसे शब्द है जो बार बार प्रयोग करने के कारण इंग्लिश माइंडसेट ने, those who speak English, they adopted those words in their whole mindset. Let's use the word dharma again and again in a right way, and let understand the whole world in next 5, 10, 15 years, and let download this word in their mindset. और उनको लगने लगे dharma, which is righteousness, which is duties, which is not religion, and even an atheist person can become dharmic person. A person even who doesn't believe in God, the concept of God, even that person can be dharmic. और ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति बहुत ज्यादा पूजा पाठ करता है, that person can be less dharmic than an atheist person can be more dharmic. Let people understand this concept. So first is the duty of Hindus to understand this concept on self. हमने पहले उसको समझना और दूसरों को समझाने की कोशिश करना। ये अपनी प्रार्थना का, अपनी फिलॉसफी का एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। And again I say, it is one of the best gift to the whole world from Hindus, because this concept of dharma, ये कहीं है ही नहीं, ये एक universal concept है। And when we think from the concept of dharma, every person on this planet should be dharmic. Are you with me? Are you agree with me? Every person on this planet, doesn't matter the Muslim or Christian or atheist or Jew or whoever, every person on this planet should be dharmic. और जिस दिन इस धरती पर हर व्यक्ति धार्मिक हो जाएगा, और क्या आनंद की बात होगी। Because then everybody thinking about the duties, not the rights. Everybody thinking about how I can help others. Everybody thinking about the great values in the life. What a better world we can live for our next generations. उस दिशा में काम करना, पहले उसको अंडरस्टैंड करना, और अपने समाज को, जिस देश में हम रहते हैं वहां के समाज को नए नए तरीके निकाल करके उसको समझाने का प्रयास करना, ये हमने करना चाहिए। I stop here and we have few minutes for any question answer.